راتیں بے ہنگم ٹریفک، جا بجا لوگوں کی بھیڑ، پارکوں اور گلیوں میں کرکٹ کھیلتے بچے، رنگا رنگ پکوان، زندگی کی یہ گہما گہمی لاہور کا اصل حسن ہے۔ اسی کے دم سے لاہور زندہ دلان کا شہر کہلاتا ہے۔ بزرگوں کے عرس کی تقریبات ہوں یا کھانے پینے کی دعوتیں، میلے ٹھیلے ہوں یا تاریخی مقامات کی سیر، لاہوری ہر موقع بہت اہتمام سے مناتے ہیں۔ چھٹی کا دن تو خاص کر ان رونقوں کا عروج ہوتا ہے۔ لوگ اپنے گھر والوں، بچوں اور دوستوں کے ہمراہ ہجوم در ہجوم شہر کے انگنت یادگار مقامات پر سیر و تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ بادشاہی مسجد خصوصی طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے۔ مسلم تاریخ اور فن تعمیر کا یہ نادر جوہر غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی خاص کشش کا حامل ہے۔ مسجد کے بالکل سامنے تاریخی قلعہ لاہور ہے، اور ان دونوں کے بیچ تصور پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال کی آخری آرام گاہ۔ مزار اقبال کے بالکل سامنے حضوری باغ ہے، جہاں ہر اتوار ایک عوامی نشست ہوتی ہے۔ یہاں زندگی کے ہر طبقے اور عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اور شاعری خصوصاً کلام اقبال پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ عام لوگ ہیں کہ جن کے دل میں اقبال کی شاعری ایک زندہ جذبے اور ورثے کی طرح محفوظ ہے۔ یہاں شاید کوئی آسائشی صوفے، کوئی نمائشی چیف گیسٹ اور کوئی پرتکلف کھانے کا اہتمام نہیں، لیکن اپنے سادہ پرخلوص جذبے میں ملبوس ہر شخص جداگانہ رنگ میں اپنے اقبال کو پیش کرتا ہے۔ آئیے حضوری باغ کے اس انوکھے اور پرجوش عوامی رنگ کا حصہ بنتے ہیں۔ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ اے آفتاب روح و روانے جہاں ہے تو، اے آفتاب روح و روانے جہاں ہے تو، شیرازہ بند دفتر کون و مکاں ہے تو، باعث ہے تو وجود و عدم کی نمود کا، باعث ہے تو وجود و عدم کی نمود کا، ہے سبز تیرے دم سے چمن ہست و بود کا، قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے، ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے۔ اب کلام اقبال کو جس منفرد طرز میں پیش کیا جائے گا وہ یقیناً گانے والے کی اپنی ایجاد ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح کا عالم، یقین محکم
عمل پہ ہم محبت فاتح کا عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. آخری علامہ صاحب فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کلام اقبال کی ادائیگی اور ساتھ ساتھ اس کی حسب حال تشریح یہ صاحب بلا شبہ کسی بھی اقبال شناس سے کم نہیں دکھتے. علامہ اقبال کی رباعیہ کتاب 2 شعروں کا اس کا معنی مفہوم جو ہے نا وہ محاسبے کے بارے میں ہے. اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. محاسبہ کرنا اپنی قوم کا، قوم کے بڑوں کا سب سے مشکل کام یہ ہے. تو علامہ اقبال نے بانگ درا میں ایک نظم لکھی ہے خطاب بے نوجوانان اسلام. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، زبان سے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور کی حدیث بھی ہے الفقر و فقری والفقر و منی. علامہ اقبال قلندر تھے، وہ بھی اس راز سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا. سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بے آب و رنگ و خال و خط حاجت روئے زیبارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ شہرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. یہ تھا ان کا کردار. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. ثابت آتا ہے مجمد کے معنوں میں، جو سیر کرنے والا ہے حرکت میں ہے، حرکت میں زندگی ہوتی ہے. وہ جو مجمد ہے جمود ہے، وہ جامد ہے، مجمد ہے جمود ہے. وہ جمود کے خاندان کے سارے لفظ اس پر پورے ہو جاتے ہیں. یعنی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم پتھر دات کے زمانے میں رہتے ہیں، اور قوموں نے ہمارے قرآن میں ڈوب کر کتنی کتنی ترقیاں کر لی، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پتھر دات کے زمانے میں چلے جائیں واپس. جب تک عدل و انصاف نہیں ہوگا، اور عدل و انصاف اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جاگیرداری، بادشاہی، جرنیل شاہی، عام ریت ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوگی. کلام اقبال کے ساتھ ساتھ حضوری باغ میں شاعری کے اور رنگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. عوامی احساسات اور امنگوں کا یہ جاندار اظہار دراصل ہر دل کی آواز ہے. پڑے ہیں راہوں میں، پڑے ہیں راہوں میں ہم بھی تو زباں رکھتے ہیں. پڑے ہیں راہوں میں ہم بھی تو زباں رکھتے ہیں. لگا کے زخم تو کہتے ہو کہاں رکھتے ہیں. انہیں تو ہم نے سجایا ہے دل کے گنچوں میں. ارادے پختہ ہیں، عزم جمع رکھتے ہیں. نہ دیکھ میری طرف گھور کے تو اے ظالم، نہ دیکھ میری طرف گھور کے تو اے ظالم. نگاہ نیک دل میں درد فغاں رکھتے ہیں. یہ اور بات کہ ہم چپ رہے ہیں ساری عمر، یہ اور بات کہ ہم چپ رہے ہیں ساری عمر. سجا کے ہونٹوں پہ زخموں کے نشان رکھتے ہیں. جہاں پہ ہر کوئی راہوں سے بھٹک جاتا ہے، قسم خدا کی ہم ہی ہوش وہاں رکھتے ہیں. آیا جو ہمیں ہوش تو رستے بدل گئے، آیا جو ہمیں ہوش تو رستے بدل گئے. سمجھا کے اپنے دل کو خود ہی سنبھل گئے.
आया जो हमें होश तो रास्ते बदल गए, समझा के अपने दिल को खुद ही संभल गए। क्या क्या न जमाने के लिए हमने किया है, महफिल का रंग देख के खुद ही निकल गए। कुछ हंजुआ झड़ियां लाइया सन, कुछ दुखा तंबू ताने ने। ये दौर बड़ी हुशियारी दा, इत्थे सारे लोग सियाने ने। इत्थे कोई किसे दा यार नहीं, किसे नाल किसे नू प्यार नहीं। इत्थे कोई किसे दा यार नहीं, किसे नाल किसे नू प्यार नहीं। भावें साह मुक जावन जिंदगी दे, असां कीते कौल निभाने ने। इत्थे कोई किसे दा यार नहीं, किसे नाल किसे नू प्यार नहीं। भावें साह मुक जावन जिंदगी दे, असां कीते कौल निभाने ने। गुरबत पैंडा मुक जाना, ये बाग ही आखिर सुक जाना। गुरबत पैंडा मुक जाना, ये बाग ही आखिर सुक जाना। फिर यादां बाकी रह जाना, साडे होने दूर टिकाने ने। कुछ हंजुआ चढ़ियां लाइया सन, कुछ दुखां तंबू ताने ने। ये दौर बड़ी हुशियारी दा, इत्थे सारे लोग उजरे थी मस्जिद आ ढोलन, मन भावरी झलक दिखाव मिठन। कहीं फिरके हैं, कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पलटने की यही बातें हैं। सजर है फिरका और आई तो सब है समर इसका, ये वो वाला जो जन्नत से निकलवाता है आदम को। ये हिंद के फिरका साज इकबाल हाजिरी कर रहे हैं गोया, बचा के दामन बुतों से गवारे राहे हजाज हो जा। ये देख मैं नज़म लिखी है जो तुम्हें सुनानी है। फिरका बंदी है नगमा संग दिल बुत का तदब्बर की फसूकारी, जहाँ के कोने कोने में है फिरका आराई की बीमारी। ते साबित होया तदब्बर में होंदा सोच समझ, जिन्होंने लोगों की सोच समझ घटिया कर दी है और जालिम किस्म के लोग ने उन्हें कढ़ी है। फिरका बंदी है नगमा संग दिल बुत का तदब्बर की फसूकारी, जहाँ के कोने कोने में है फिरका आराई की बीमारी। गुलशन की तबाही का समाह नजर तेरी, तो सबसे जो बच निकले वो मर्द है तातारी। ला तफर्रकू की आयतें ये कुरान में रिया करती हैं, ये कमाल है तेरा कि तू फिरका आराई का है पुजारी। कभी जो मौज में आए कुरान को सर पर उठाते हैं, मौलवी की कर देने। कभी जो मौज में आए कुरान को सर पर उठाते हैं, फिरका हमारा सच्चा है बाकी सब है नारी। ये मारते सारे झूठने, जाते दीन का डंका और करते पेट पूजा है बना के मोर्चा, दीन को चलाते हिर्स का तीर है शहकारी। पसंद दीन इस्लाम आया महबूब को मुस्लिम दाम दिया, कुरान पाक लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तेरे लिए दीन इस्लाम पसंद किया और नाम तुम्हारा मुसलमान रखा। बाकी जो है फिरके फुरके सब गलत ने। पसंद दीन इस्लाम आया महबूब को मुस्लिम नाम दिया, इन राहों से जो बटके इन पर वहम है तारी। तेरी वाज में मुल्ला हर दरमी के सिवा कुछ भी नहीं, मुस्लिम को बखेरा है तेरी अजादारी। कल जो हशर को खुदा के रूबरू होगा, वो कौन सा जवाब है जैसे तू सुरखरू होगा। मुझको हकीर समझ का ठुकराना देना मेरी दास्तान गम को, मुझे मिला है ये नुक्ता कुरान की आते खोल कर सारी। तेरी अतायत का ये कमाल है कि तूने दीन को एक पहिया समझा। तेरी अतायत का ये कमाल है कि तूने दीन को एक पहिया समझा। खादम दुश्मनी दी है ये नहीं है वफादारी, ये दीन न दुश्मनी वफादारी नहीं। अल्लामा इकबाल खुसूसियत से खुद अपना कलाम जलसों में आम आवाम के लिए पढ़ा करते थे। इकबाल की शोरा आफाक नज़्म शिकवा से तो आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन इस सच्चाई और जोश से शिकवा की अदायगी शायद हुजूरी बाग ही का खासा है। ये शेर अगने जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसी असल से रिफत पे नजर रखती है, खाक से उड़ती है गुर्दों पे नजर रखती है। इश्क का फितना सरकस हो चिराग मेरा, आसमान चीर गया नारे बेबाक मेरा। पीरों गुर्दों ने कहा सुन के कहीं है कोई, कैक्षा कहती थी मुशीदा यही है कोई। चांद कहता था अहले ज़मीं है कोई, कुछ जो समझा मेरे शिकवे तो रुबान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। हम तो माइल बाकर हमें कोई साहिल ही नहीं, हम तो माइल बाकर हमें कोई साहिल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे डर वो मंजिल ही नहीं। तरबियत तो आम है पर जोड़े काबिल ही नहीं, जिससे तमीर हो आदम की जो गिल भी नहीं। तेरी महफिल भी गई जाने वाले भी गए, तेरी महफिल भी गई जाने वाले भी गए। शब की आह भी गई सुबह के नाले भी गए,
दिल तो जे दे भी गए, अपना सिरा ले भी गए, आकर बैठे भी न थे तो निकाल भी गए। दामाने दिल फिगार का इकबाल जिंदा है, एक मर्दे आशकार का इकबाल जिंदा है। ए दिल गुलो शमीम की मस्ती में डूब जा, ए दिल गुलो शमीम की मस्ती में डूब जा, गोया भरी बहार का इकबाल जिंदा है। और इस ज़ूफ़शां सहर से ही जिंदा हो दिल अगर, इस ज़ूफ़शां सहर से ही जिंदा हो दिल अगर, रुखे अंजमो निगार का इकबाल जिंदा है। दामाने दिल फिगार का इकबाल जिंदा है। आइए मिलते हैं हुजूरी बाग के बेताज बादशाह से। अमीर हुसैन इकबाली हाफ़िज़ इकबाल हैं। इस उम्र में भी वो किसी 20-21 बरस के नौजवान की तरह जज्बाती और वलवला अंगेज़ अदायगी के ज़रिए इकबाल की शायरी में एक नई रूह फूंक देते हैं। यही जोश व खरोश और मुनफरिद अंदाज देखने हर इतवार दूर दराज से लोग हुजूरी बाग इकट्ठे होते हैं। तू कहना रब साबित कर, असी तेन रब दिखाई देने। गौर तलब अरमगाने हिजात पढ़ रहे हैं, जरबे करीम को किया, तेरी निगाह में साबित नहीं है खुदा का वजूद, मेरी निगाह में साबित नहीं है वजूद तेरा, और वजूद क्या है जोर खुदी की नमूद। कर फिक्र अपनी के जोहर बेनमूद तेरा, तू बेनमूद है, वो नमूद किया हूँ दलाइल दे रहा है। ना पूछ मुझसे, हकीम साहब गौर तलब है, ना पूछ मुझसे उम्र गरीज़ पाक क्या है, ना पूछ मुझसे उम्र गरीज़ पाक क्या है, मगर ये नरंगो सीमी यहाँ क्या है, जहाँ की रूए रुमा ला इलाहा इल्लहू, मगर ये मसीहो मीखो चलीपा ये माजरा क्या है। कसासे खूने तो मन्ना का मांगिए किससे, गुनाहगार है कौन और खूने बहा क्या है। दिलो नज़र इसी आबो गिल की है इजाद, नहीं तो हजरत इंसान की इंतहा क्या है, नहीं तो हजरत इंसान की इंतहा क्या है। तो अगर मैं खास गल, अगर मैं कुल हूँ तो मुझसे माबरा क्या है, मेरे हंगामा है नौ बनाओ की इंतहा क्या है। शिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, मकाम गुफ्तगू क्या है। अगर मैं कीमियागर हूँ यही मेरी सोच नफस है, और कीमिया क्या है नजर आई तकदीर की गहराइयाँ इसमें, ना पूछे हम नशी वो चश्मे सुरमा था क्या है। अगर होता मौजूद फरंगी ज़माना में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया मेरी नवाए शौक से शोर हरी में जात में गुलगुला हाय अल्लामा बुद्धा सफात में हुरो फरिश्ता है असीर मकाम, हुरो फरिश्ता है असीर मेरे तखयलात में, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में, गाशिया मेरी जिस्तजू दारो हरम की नक्शबंद, मेरी फकां से रस्ता खेत काबा सोमनाथ में, गाहे मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद दाह उलझ के रह गई मेरे तो हम हाथ में। और तूने ये क्या गजब किया, मुझे भी फाश कर दिया, ना ही तो एक राज था सीना कायनात। आगे चलो, हाले गल मुकी नहीं, ये रब भी डाडा ते आदम भी डाडा। या गौर तलब इस कायनात दे विच एक रहमान है, एक शैतान है, एक इंसान है, तीन हस्तियां ने। या गौर तलब है फिर को फिर के रूबरू कर और तस्वीर मकाम रंगो बू कर। तू अपनी खुदी को खो चुका है, खोई जू कर। उड़िया है तेरे चमन की हूरे, चाके गुरु लाला को रफू कर। तारों की फजा है बेकराना और तू भी ये मकाम आरज़ू कर। और बेज़ौक़ नहीं अगर जो फितरत और जो उससे ना हो सका वो तू। जो तो था नहीं है, जो है ना होगा,
यही है घर पे मेहरमाना, करीब तारा नमरूद जिसकी मुश्ताक है उसी का जमाना। मेरे खमो पेज को नजूमी की आंख पहचान सकती नहीं, मेरे खमो पेज को नजूमी की आंख पहचान सकती नहीं। हदत से बेगाना तीर उसका निगाह नहीं जिसकी यार पाना, और इसको आसान पड़ता है। अमीर सिपा ना सदा लश्करियाँ शिकस्ता सा, आहबत तीर नीम का जिसका ना हो कोई हदफ, इसके बुतान से हाथ उठा अपनी खुदी में डूब जा। नक्श नगार दायर में खूने जिगरना कर तलब, तेरे महीत में कहीं गहरे जिंदगी नहीं। ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका मैं सदब सदब, खोल के क्या बयां करूं सिरे मकाम में मर गए इश्क़ बाशरफ, मर गए हजात बेशरफ। सब तीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजे एक कलीम सर बकफ, खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, और सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजर। कहते ने आज़ाद हो गया 60 साल, और तुझे 60 साल तो बहुत गुलाम हो गए। इकबाल हल कर गया। अब वाइज जाकर केड़ा ना मन्ने खुदा नू काफर है। इकबाल कहता नहीं ये गल गलत है। मुनकरे खुदा नज़्द मुल्ला, मुनकरे खुदा काफरस्त, कहता नहीं गलत। नज़्द मन मेरे नजराज कौन है काफर, मुनकरे खुद अपने आप को मुनकर हो जाना काफर तारस्त, कहता इससे बड़ी काफरी की तू जिंदा होकर जिंदगी का नहीं सोच रहा। नहीं समझ आई गल। अलामा ये भी कह गया है मुझे आओ फंगा नीम साहब का फिर प्याम आया, थम में रहो जरा शायद फिर कोई मुश्किल मकाम आया। जरा डूब जा तकदीर की गहराइयों में तू भी, जिस जिनगाह से मैं बन के तेरे बेनियाम आया। ये मिसरा की शौक ने लिख दिया महराबे मस्जिद पर, यह नादान गिर गया सजदों में जब वक्त क़याम आया। ये मैं गल लगा कर, इलम के नाल अकल नहीं आती। अगर अकल इलम नाल आ जाए तो सारे आलम बड़े ऊँचे हों। जिंदगी कुछ और शय है, इलम कुछ और शय है। जिंदगी सोजे जिगर है, इलम सोजे दिमाग। इलम एक अलग चीज़ है, लाहौर आसान कर देंगे हैं। जिथे इलम ते अकल है दोनों कंट्रोल कर गया मर्दे मुजाहिद है। बांगे दराजा हवाला देने लगा है। अक्ल ने एक दिन दिल से ये कहा भूले भटके की रहनुमा हूँ मैं, ज़मीन पर हूँ गुजर फलक में मेरा, देख तो किस कदर रसा हूँ मैं। काम है दुनिया में रहबरी मेरा, ये अक्ल कह रही है। काम है दुनिया में रहबरी मेरा, मिसले खजरे खजस्ता पा हूँ मैं। मुफस्सर हूँ किताबे हस्ती की, मदरे शानी की बिरिया हूँ मैं। तू खून की बूंद है लेकिन यारत लाले बेबहा हूँ मैं। और दिल ने सुनकर कहा ये सब सच है, पर मुझे भी तो देख क्या हूँ मैं। इल्म तुझसे तो मार्फत मुझसे, तू खुदा जू खुदा नमा हूँ मैं। इल्म की इंतहा बेताबी मगर इस मर्ज की भी दवा हूँ मैं। तू शम्मा है महफिल सदाकत की, तो हुसन की बदम का दिया हूँ मैं। तू जमा मकान रिश्ता बाबा तो तायर सिदरा आशना हूँ मैं। और देख तो किस कदर बुलंदा मुकाम मेरा, अर्श रब्बे जलील का हूँ मैं। मेरी सादगी रिवायत का ये सफ़र जारी रहना चाहिए कि इकबाल की शायरी हमें अब भी हमारे इनफरादी और इज्तमाई सवालों का जवाब देती है, हमारे आज और कल को मानी बख्शती है। सोचना ये है कि क्या हम यकसुई और यकीन से किसी रोशन मंजिल की जानिब गामज़न होना चाहते हैं, या महज बेहंगम ट्रैफिक और इंसानों की भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं।